अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुड बेटर बेहतरीन। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो कदरे सीरियस है बिकॉज इट इज़ वेरी वाइटल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इमोशनल वेल-बीइंग, फॉर आवर मेंटल साइकोलॉजिकल एंड फॉर आवर ओन सेल्फ इमेज and our own life force energy. You know, the motivation and the spirit and drive that keeps us going and that strengthens us and helps us to go from strength to strength. यानी वो वाली जो हमारी एक अंदर का जो हमारे दिल का जो एक दिया होता है जिसको हमें नरिश और फीड करने की ज़रूरत होती है खुद भी, लेकिन हमें उसके लिए एक सपोर्ट नेटवर्क भी चाहिए होता है, which is exactly why I have often spoken about the importance of surrounding yourself with good people, networking with the right kind of people, and always making sure that you have a bunch of sincere, well-meaning people around you. People who although navigate you and guide you whenever you need a little bit of correction or you need to get your bearings right, लेकिन वो जो आपको encourage भी करें, वो जो आपको आपके positives भी दिखाएं, वो जो आपको आपकी strengths या accomplishments या achievements के ऊपर आपको pat on the back दे, thumbs up दे, kudos to you बोलें, और जब आपको ज़रूरत हो they say I've got your back, वो वाले लोग। अच्छा जी, आज का टॉपिक है how to deal with toxic people. It is a very reassuring fact to see that there is much more awareness these days and we have access to such wonderful, helpful material on the net, and you and I, we've attended workshops where we've discussed this topic. हमारी soul, हमारी well-being पे क्या असरात रहते हैं while we are there in their company, in their presence, और वो क्या रेजिड्यूअल इफेक्ट छोड़ जाते हैं हमारे सेल्फ इस्टीम पे, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, हमारे कन्विक्शंस पे, और हमारी ड्राइव एंड मोटिवेशन को वो किस तरह सैप करके चले जाते हैं। एंड बिकॉज it is not possible to call them to task or to actually interrogate, question, or it is not always possible that we sever all contact with them and that we vow to ourselves never to be in their space again. It's not always possible because more often than not such toxic people are part of our social circle, sometimes friend circle, and yes, quite shockingly so, sometimes even within family. आइए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से। आई नो इट टुक मी क्वाइट अ फ्यू इयर्स, वक्त लगता है कुछ चीज़ों को सीखने और समझने में, लेकिन अगर आप लोग जो हमसे बहुत ज़्यादा यंगर हैं, इफ़ यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट ऑन दिस and if you can be watchful and if you can beware such people, that would be so wonderful. अच्छा जनाब, अब एक्शन प्लान के बचाव और डील कैसे किया जाए, और करना ऐसे है कि बहुत टैक्टफुली करना है, कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी है। दीज फैमिली मेम्बर्स, यू हैव टू बी एज न्यूट्रल, as calculated, as polite and respectful with regards to their position and their role in the family. And जैसे कि मैंने आपको जनरली भी बताया है, जो डिस्टेंट सर्कल्स में भी अगर ऐसे कुछ लोग हैं, वही वाली चीज़ें अप्लाई होंगी फैमिली मेम्बर पे भी, लेकिन इनके साथ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस टू गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट, और इनकी पोजीशन का ख्याल रखते हुए आप इनको पूरा प्रोटोकॉल दीजिए। आप इनकी खुद से कोई बेअदबी नहीं करें, आप इनको खुद से प्रोवोक नहीं करें, उनको उस वाले जोन के करीब जाने ना दें जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लोगों का परपेट्रेटर विक्टिम रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जिसके लिए आई वुड से अगेन, डोंट गो आउट ऑफ द वे टू शेयर योर आइडियाज़, to share your thoughts, to share your opinions about concepts, about politics, about religion, about your way of life, about your belief system
regarding so many aspects of life. Next category आती है toxic people who don't appear on the scene as perpetrators or monsters. ये अक्सर आपके पास आएंगे, वो आपको अपने पिट स्टॉप की तरह, गाड़ियाँ आती हैं पिट स्टॉप पे, रिफ्यूल करती हैं अपने टायर्स को, अपनी सारी चीज़ों को, अपना सब कुछ फ्रेश करती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं. ये वाले जो लोग हैं ये विक्टिम्स हैं. they'll come to you with a sob story of their own and they'll want to connect to you and they'll want to charge their devices, that the devices of their selves, of their person, of their personality, और वो आपसे खूब अच्छी तरह अपनी डिवाइस, अपनी ज़ात की डिवाइस चार्ज करके आपको ड्रेन करके आगे बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे बड़ा एक कैच है, यू हैव टू बी रियली केयरफुल बिकॉज यू डोंट वांट टू बी, आप खुद से कुछ गलत काम नहीं करें तो बेहतर है, खुद से किसी के साथ भी गलत नहीं करें. तो हम उनको हर्ट भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो जेन्युइनली विक्टिम्स भी होते हैं, लेकिन उनको एक कंडीशनिंग हो जाती है, उनको आदत हो जाती है. दे सी यू एज अ चार्जिंग स्टेशन, दे सी यू एज द पिट स्टॉप, दे जस्ट कम टू यू. उनको पता है कि अगर उनको और कोई एंटरटेन नहीं कर रहा, जो कुछ बहुत स्ट्रीट स्मार्ट और जो बहुत स्मार्ट एलेक्स हैं और जो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड लोग हैं, जो उनके लिए दे वोंट मेक टाइम फॉर देम. तो अगर आप थोड़े से भी एथिकल, और इफ़ यू आर एन एम्पैथ, इफ़ यू आर अ सिंपैथेटिक पर्सन विद अ सिंपैथेटिक ईयर टू लिसन टू people's sob stories and lend them a shoulder to cry on, तो यूजुअली आप इस तरह के कुछ टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं. कि अगर किसी की आदत बन गई है कि वो अपनी सॉब स्टोरी, अपने ससुराल की बातें, अपने स्पाउस की शिकायत, अपने जो भी अपने वर्क प्लेस की, अपने बॉस की शिकायतें, अपने कलीग्स की शिकायतें, अपनी देवरानी जिठानी की शिकायतें, या मतलब मेन में बॉयज़ में भी होते हैं कि एक बंदा ऐसा होता है ग्रुप में जो बस ढूंढ लेता है अपना कोई पिट स्टॉप, अपना कोई चार्जिंग स्टेशन, और वो हमेशा के कोच ने मेरे साथ ये किया और बाकी फ्रेंड्स को देखो ये कर रहे हैं मेरे साथ, और ये मेरे साथ ये कर रहा है, और घर पे मेरे साथ ये हो रहा है, और ये मेरे साथ ये करता है. तो ऐसे लोगों के साथ आप उनको हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन बाउंड्रीज सेट कर लीजिए. सबसे पहले तो आप उनको आइडेंटिफाई करें. पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा था, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये शख्स जो है ये अब हैबिचुअल कंप्लेनर बन गया है, इसको आपके पास आने की, डॉक्टर की तरह आपको विजिट करने की आदत हो गई है, कंसल्टेशन के लिए आता है, एक्चुअली सिर्फ अपनी बात कह के अपना सारा बोझ और नेगेटिविटी और सारी जो उसके अंदर की बिटरनेस और रिजेंटमेंट है पूरी सोसाइटी की, वो आपके ऊपर उंडेल के आपको बोझल करके और ख़ुद चला जाता है. एक तरह से तो ये बहुत बड़ी नेकी का काम है अगर आप ऐसे लोगों की बात सुन रहे हैं. लेकिन एक बात कहूँ, अगर आप इस तरह हर वक्त करते रहेंगे और आप ड्रेन होते रहेंगे और वो चार्ज होता रहेगा, तो फिर एक टाइम आएगा कि खुद आप विक्टिम फील करने लगते हैं. आप इतना ज़्यादा एम्पथेटिकली और सिंपथेटिकली सुनते हैं कि आप उसकी चीज़ों की टेंशन और स्ट्रेस लेने लगते हैं, और अ टाइम कम्स व्हेन यू योरसेल्फ आर इन नीड ऑफ हेल्प. तो ये नहीं होने दीजिए. सेट बाउंड्रीज विद सच पीपल. एक हद तक सुनिए और फिर बहुत खूबसूरती के साथ उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाए बगैर ट्राई टू वर्क आउट एंड एग्जिट फ्रॉम दैट सिचुएशन. इससे ये होगा, बहुत टैक्टफुली करिएगा, ब्लंटली नहीं कि एक दिन आपने 3 घंटे या 2 घंटे उनकी बात सुनी और एक दिन आपने 2.5 मिनट बाद कहा ओके एडियोस अमीगोस आई एम आउट ऑफ हियर. इस तरह नहीं करिएगा. फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप सडनली पलट गए हैं, बदल गए हैं. ग्रेजुअली उनको वीन ऑफ करें, ग्रेजुअली वीन ऑफ करें, और एक ऐसा टाइम आएगा कि आप एक बिल्कुल हेल्थी स्लॉट तक ले आएंगे. उससे ये होगा कि आप you won't lose your neki, you won't lose your what you were offering them as a gift, लेकिन आप खुद सैप होने से और ड्रेन होने से बच जाएंगे.